Welcome students in your political science class. As you know, our contemporary world politics book is going on, and in that book we started our chapter 1, Era of Cold War. So chapter number 1, Era of Cold War, is going on. We will complete the next part of the chapter. Earlier, before your assessment 1, we discussed the first part of the chapter, what is Cold War and the emergence of Cold War, Cuban Missile Crisis. Up to this part we completed. But in this video, which we are going to start, the topic to be covered are arenas of Cold War, challenge to biopolarity, new international economic order, India and the Cold War, India and NAM, criticism of non-aligned movement. So we are going to start our second part of the chapter. Emergence of two blocks. You know, in the last video we discussed what was Cold War, and as you know, in that part I told you after the Second World War, which was completed in 1945, the whole world was divided into two blocks. One was led by USA and the second one was led by USSR. USA followed the policy of capitalism and USSR followed the policy of communism. So Cold War was going on. This Cold War threatened to divide the world into two alliances. The whole world war was divided into two parts. One was following the policy of USA and second one followed the policy of USSR. The communist China called with USSR toward the late 1950s and 1969. They fought a brief war over a territorial dispute. After that, non-aligned movement NAM, which gave the newly independent country a way of staying out of the alliances. What was this non-aligned movement? We will discuss this movement in detail in our next slides. So up to this, you know that the whole world was divided into two blocks. So India did not join any bloc. India followed a neutral policy. This was non-aligned policy. Superpowers and the smaller states. There were two superpowers. One was USA, second was USSR. But the smaller states were helpful for the superpower in gaining access to. Why the superpowers allied with the smaller state? What was the benefit of the superpower in this? There were four benefits of the superpower by allied with the smaller state. First one, just see on your screen, vital resources such as oil and minerals. जब सुपर पावर्स ने स्मॉलर स्टेट के साथ गठजोड़ कर लिया तो इससे उनको क्या फ़ायदा हुआ? फर्स्ट पॉइंट, जो मेन रिसोर्सेज थे इन कुछ कंट्रीज़ के, जैसे ऑयल, मिनरल्स, टेरिटरी, जहाँ पर सुपर पावर जो हैं वो अपने वेपन्स और ट्रूप्स को रख सकें. और जैसे कि आपको पता है कि यूएसएसआर ने क्यूबा में अपना मिसाइल्स को लगाया था, तो उसके जिस क्राइसिस को हम क्यूबन क्राइसिस मिसाइल का नाम भी देते हैं. एंड लोकेशन फ्रॉम वेयर दे कुड स्पाई ऑन ईच अदर, वो ऐसी प्लेसेस जहाँ पे वो एक दूसरे पर जासूसी कर सके. और इकोनॉमिक सपोर्ट,
in that many small allied together could help pay for military, ताकि इन स्मॉलर स्टेट से सुपर पावर जो हैं उनको भी हेल्प मिल सके और इन स्मॉलर स्टेट को भी इकोनॉमिक सपोर्ट जो है वो मिल सके। तो इस तरह से सुपर पावर जो थे उन्होंने स्मॉलर स्टेट्स के साथ अलाइड जो था बना लिया। Arenas of the Cold War. The two superpowers, as you know, there were two superpowers. They were poised for direct confrontations in Korea. In 1950 to 1953, Berlin 1958 to 1962, the Congo in the early 1960s, and several other places. ये जो सुपर पावर्स थी इनके कई जगह पे अलग अलग पार्ट में डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन जो थी वो होती रही, जैसे कि कोरिया में, बर्लिन में, कॉन्गो में। व्हेन वी टॉक अबाउट द एरिनास ऑफ द कोल्ड वॉर वी रेफर टू द एरिया वेयर क्राइसिस एंड वॉर अक्कर्ड और थ्रेटन टू अक्कर बिटवीन द अलायंस सिस्टम बट डिड नॉट क्रॉस सर्टेन लिमिट्स। जब हम एरिनास ऑफ कोल्ड वॉर की बात करते हैं तो हमारा मतलब उस एरिया से होता है जहाँ पे क्राइसिस और वॉर जो है वो इन दो सुपर पावर के बीच में अक्कर हुआ, कि वो कौन सा प्लेस था, वो कौन सा एरिया था जहाँ पे ये दो जो सुपर पावर्स थी उनमें क्राइसिस चला, वॉर चली। और चाहे वो कोल्ड वॉर ही थी, डायरेक्ट वॉर नहीं थी। ये तुम जानते हो कि पहले अभी just we discussed earlier also about the Cold War. This war was not a direct war. It was not direct war, but it was indirect war. So this was the arenas of the Cold War, means the crisis and the war occurred or threatened to occur between the alliance system. लेकिन ये कुछ अपनी limitations को क्रॉस नहीं किया उन्होंने। Non-aligned movement. Now, what was this non-aligned movement? Sometimes countries outside the two blocks, for example, the non-aligned country played a role in reducing Cold War conflict and averting some grave crisis. जैसे कि अगर कुछ कंट्रीज़ ऐसे थे जिन्होंने यूएसए को फॉलो किया, कुछ कंट्रीज़ ऐसे थे जिन्होंने यूएसएसआर को फॉलो किया, लेकिन कुछ कंट्रीज़ जिसमें से इंडिया एक था उन्होंने किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं किया, किसी भी ब्लॉक में वो शामिल नहीं हुए। उन्होंने अपना अलग मूवमेंट चला लिया जिसको कि नॉन अलाइंड मूवमेंट का नाम दिया जाता है, जिसमें कि इंडिया ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, independent India, he played a key role in this movement. He was one of the key leaders of the NAM, played a crucial role in mediating between the two Koreas, North Korea and South Korea. In the Congo crisis also, UN Secretary General played a key mediatory role. You know, UN is a world organization to maintain peace and security among nations. So the UN Secretary General also played an important role in the Congo crisis. Treaties between two superpowers. चाहे ये दो सुपर पावर जो थी आपस में कोल्ड वॉर चल रहा था इनका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, लेकिन इसके बावजूद भी इन दोनों जो सुपर पावर्स थी उन्होंने कुछ ट्रीटीज़ पे साइन किए आपस में, जो कि वॉर के लिए जो वो वेपन्स, कोल्ड वॉर के लिए जो वो वेपन्स बना रहे थे उन वेपन्स की दौड़ पर रोक लगाई जाए। तो ये 1960s में दोनों साइड्स के बीच में कई एग्रीमेंट हुए, जिनमें से ये कुछ ट्रीटीज़ थी। फर्स्ट वन, जस्ट सी ऑन योर स्क्रीन, Limited Test Ban Treaty. First one was Limited Test Ban Treaty. Second, Nuclear Non-Proliferation Treaty. And third one, Anti-Ballistic Missile Treaty. Anti-Ballistic Missile Treaty, which was
signed between two superpowers in the 1960s. Just see on your screen, one map is given. Here, first world, second world, third world. Yellow color. Just see on your screen, yellow color shows the first world country, means the US, Canada, North American country. Second, red color. Just see on your screen, red color. This color shows the USSR and its allied countries which followed the policy of communism. And third is the green color. These countries are the non-aligned movement countries like India. Those countries, those who did not join any bloc, they were developing countries, so they were also known as third world countries. They did not join any bloc, so they are known as third world countries. Challenge to biopolarity. Non-alignment offered the newly decolonized countries of Asia, Africa and Latin America a third option, not to join either alliance. जैसे कि मैंने अभी आपको मैप दिखाते हुए बताया कि जो नए नए इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ थे एशिया और अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के, जिनको कि कॉलोनलाइजेशन के बाद वो इंडिपेंडेंट हुए थे, उन पे जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे उन्होंने कॉलोनलाइजेशन सेटअप किया, अपनी कॉलोनी बनाया उनको। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो उनको इंडिपेंडेंस मिली, तो उन्होंने किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं किया, वो किसी भी ब्लॉक में शामिल नहीं हुए, तो इनको नॉन अलाइंस्ड कंट्रीज़ कहा जाता है। तो ये चैलेंज था बायोपोलैरिटी के लिए। बायोपोलैरिटी मीन्स टू ब्लॉक्स, कि उनके लिए ये चैलेंज था। और ये नैम जो था नॉन अलाइंड मूवमेंट, इसकी रूट्स कहाँ से स्टार्ट हुई? जब तीन कंट्रीज़ के लीडर्स के बीच में फ्रेंडशिप हुई। ये कंट्रीज़ कौन से थे? जस्ट सी ऑन योर स्क्रीन, यूगोस्लाविया, सेकेंड was Egypt and third was Indonesia, and their three leaders were, first one Yugoslavia's Josip Broz Tito, India's Jawaharlal Nehru and Egypt's leader Gamal Abdel Nasser, who held a meeting in 1956. Indonesia's Sukarno and Ghana's Nkrumah, they also supported them. So these five leaders came to be known as the five founders of non-aligned movement. The first non-aligned summit was held in Belgrade in 1961. तो इस तरह से जो नॉन अलाइंड मूवमेंट था वो शुरू हो गया, और तीन मेन लीडर्स थे इसमें, यूगोस्लाविया का, इंडिया के और इजिप्ट के। और इनकी जो फर्स्ट समिट थी वो बेलग्रेड में हुई 1961 में। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नैम, कोऑपरेशन अमंग दीज 5 कंट्रीज। अब जो नॉन अलाइंड मूवमेंट बना, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, मेन एम्स क्या थे? ये चाहता था कि 5 कंट्रीज़ में कोऑपरेशन होनी चाहिए। एंड ग्रोइंग कोल्ड वॉर टेंशन एंड इट्स वाइडनिंग एरिनास, कि जो वॉर की वजह से वर्ल्ड में टेंशन हुई है कोल्ड वॉर की, उसके अगेंस्ट कि उसको कैसे ख़त्म किया जाए। और ड्रामेटिक एंट्री ऑफ न्यूली decolonized African countries into the international area. By 1960, there were 16 newly African members in the UN. आपको पता है कि उसके बाद बहुत सारे एशियन अफ्रीकन कंट्रीज़ को इंडिपेंडेंस मिली, और 1960s तक नए अफ्रीकन जो मेंबर्स बने कंट्रीज़ के, वो UN में 16 थे। तो इस तरह से इसका नॉन अलाइंड मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव था कि कंट्रीज़ के बीच में कोऑपरेशन बढ़ाई जाए। जो 5 कंट्रीज़ हैं, इंडोनेशिया, इजिप्ट, इंडिया, और तो इसके साथ साथ जो है, जो नए नए कंट्री इंडिपेंडेंट हुए थे, नई इंडिपेंडेंस मिली थी उनको,
उनको भी इस नॉन अलाइंड मूवमेंट का मेंबर बनाया जाए। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, तो आफ्टर दैट एक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जो था वो लेस डेवलप्ड कंट्री LDC, LDC मीन्स लेस डेवलप्ड कंट्रीज जो थे उनके बीच में साइन हुआ। तो ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD brought out a report in 1972 entitled Towards a New Trade Policy for Development। इस जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट थी उसने 1972 में एक नई रिपोर्ट जो थी वो लेके आई जो कि डेवलपमेंट के लिए न्यू ट्रेड पॉलिसी थी। ये रिपोर्ट क्या कह रही थी? द रिपोर्ट प्रपोज्ड अ रिफॉर्म ऑफ द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम सो एज टू, ये रिपोर्ट क्या चाहती थी? फर्स्ट वन, जस्ट सी ऑन स्क्रीन, गिव द LDC कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइटेड बाय द डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्रीज। LDC इज हियर लेस डेवलप्ड कंट्रीज को अपने रिसोर्सेज पे कंट्रोल उनका हो, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज जो थे उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे उनके रिसोर्सेज को, वो अपने रिसोर्सेज को खुद कंट्रोल करें। सेकेंड वन, obtain access to western market so that the LDC could sell their products and make trade more beneficial for the poorer country, जो ट्रेड है वो पुअर कंट्री के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो। थर्ड, reduce the cost of technology from the western country। Fourth, provide the less developed country with a greater role in international economic institutions। जो भी UNO की इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन थी जैसे कि UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड जो थी वो उसके थ्रू वो चाहते थे कि वो उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सके जितने भी लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो सारे। इंडिया एंड द कोल्ड वॉर, एज ए लीडर ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट, India's response to the ongoing Cold War was twofold। इंडिया ने जो कोल्ड वॉर में उसमें कैसा रिस्पॉन्स था इंडिया का? एट वन लेवल इट टुक पर्टिकुलर केयर इन स्टेइंग अवे फ्रॉम द टू अलायंसेस। एक तो इंडिया ने टू अलायंसेस से दूर रहना चाहता था, जैसे कि इंडिया ने नॉन अलाइंड मूवमेंट पॉलिसी फॉलो की। सेकेंड, it raised its voice against the newly decolonialized country become part of these alliances। और इंडिया चाहता था कि जितने भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, जितने भी डीकोलोनलाइज कंट्रीज हैं, वो इन अलायंस के पार्ट ना बने, वो इनसे दूर रहें। इंडिया एंड द कोल्ड वॉर, a non-aligned posture also served India's interest very directly in at least two ways. First one, non-aligned allowed India to take international decisions and stances that served its interest rather than the interest of the superpowers and their allies। इंडिया नॉन अलाइनमेंट के थ्रू चाहता था कि इंटरनेशनल डिसीजन जितने भी लिए जाते हैं उसमें इन सुपर पावर्स और उन्हें एलाइड का जो इंटरेस्ट की बजाय बाकी जो नॉन अलाइंस कंट्रीज़ हैं जो इनमें शामिल नहीं हुए उनके इंटरेस्ट भी पूरे होने चाहिए। सेकेंड, इंडिया वाज ऑफन एबल टू बैलेंस वन सुपर पावर अगेंस्ट द अदर। इंडिया चाहता था कि इन सुपर पावर्स में एक दूसरे की बजाय वो बैलेंस जो है वो बना सके। क्रिटिसिज्म ऑफ नॉन अलाइंस मूवमेंट, लेकिन इंडिया की इस नॉन अलाइंस मूवमेंट की पॉलिसी की क्रिटिसिज्म भी हुई। फर्स्ट, India's non-alignment was said to be unprincipled. In the name of pursuing its national interest, India often refused to take a firm stand on crucial international issues। इंडिया की नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की क्रिटिसिज्म हुई कि ये अनप्रिंसिपल थी। कैसे? सेकेंड, इट इज सजेस्टेड दैट इंडिया वाज इनकंसिस्टेंट एंड टुक कॉन्ट्रेरी पोस्चर्स, कि इंडिया जो था वो कॉन्ट्रेरी जो डिसीजंस था वो ले रहा था। जैसे कि इंडिया ने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप 1971 अगस्त में साइन की USSR के साथ,
20 ईयर्स के लिए। तो जो इसके इंडिया के क्रिटिक्स थे, जो नेबरिंग कंट्रीज थे, उनको लगा कि इंडिया का जो झुकाव है वो यूएसएसआर की तरफ बढ़ता जा रहा है। चाहे इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट पॉलिसी जो है वो ऑप्ट की है, बट इसका जो ट्रेंड है, झुकाव है, वो यूएसएसआर की तरफ है, क्योंकि उसने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप 1971 में यूएसएसआर के साथ 20 ईयर्स के लिए साइन कर ली थी। सो विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, लेकिन क्या हुआ कि 1991 में यूएसएसआर जो था वो उसकी डिसइंटीग्रेशन हो गई। जितने भी उसके 15 स्टेट्स थे वो सब अलग हो गए, और इससे जो कोल्ड वॉर था 1991 में एंड हो गया, क्योंकि अब सुपर पावर एक ही रह गई थी, दो नहीं थी। यूएसए ही रह गया था, यूएसएसआर ख़त्म हो गया था। तो नॉन अलाइंसमेंट बोथ एज एन इंटरनेशनल मूवमेंट and as the core of India's foreign policy lost some of its earliest relevance and effectiveness, जो कि इससे ही इंडिया का जो नॉन अलाइंस मूवमेंट की पॉलिसी थी और इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल रहा, उसकी रेलिवेंस और इफ़ेक्टिवनेस कुछ टाइम के लिए ख़त्म हो गई। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया जो है आज, अगर मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें, तो नॉन अलाइंस मूवमेंट आज भी चल रहा है। आज चाहे कोल्ड वॉर ख़त्म हो चुका है 1991 के बाद, लेकिन अभी भी नॉन अलाइंस मूवमेंट में इंडिया एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अभी इन दिस ईयर नॉन अलाइंस मूवमेंट की जो मीटिंग थी वो अजरबैजानिया में हुई, अजरबैजानिया कंट्री में हुई अभी रिसेंटली, और जिसमें कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, he also attended the non-aligned movement summit through video conference। तो और जिसमें कि ये कहा गया कि इंडिया चाहता है कि आज जो है इस नॉन अलाइंस मूवमेंट को एक ऐसी स्टेज बनाया जाए, एक ऐसा मंच बनाया जाए, और जिससे कि जितने भी लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, और वो सब अपने एम्स को पूरा कर सकें। जितने भी वहाँ पे इंडिया में या बाकी वर्ल्ड की कंट्रीज़ में, लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस नॉन अलाइंस मूवमेंट को एक मंच के तौर पे यूज़ किया जाए। तो इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर है एरा ऑफ कोल्ड वॉर हमने कंप्लीट किया। ऑल ऑफ यू आर डूइंग योर वर्क, आप सब अपना काम अच्छा कर रहे हो, एंड यू हैव टू नोट डाउन ऑल द पॉइंट्स इन योर पेयर नोटबुक, learn the part, do the assignment which will be given to you based on this chapter. So complete the work, learn it side by side. Thank you.